Okay, yes, people, good morning to all of you. In last class, we have started issue and redemption of a debenture. Okay, also we already covered redemption out of capital, redemption out of profit, and redemption out by way of a conversion. So, in this class, today we will solve some problems of redemption of debenture. Basically, we will cover redemption out of capital, redemption out of profit, and redemption out of redemption out of capital, redemption out of profit, and redemption by way of a conversion. Okay, so let's start. Kindly read question number 1. तो carefully question number 1 read करो. Okay, if you have no study mat, then my request will be, my advice will be, kindly write the question in your copy, then proceed ahead. Okay, if you don't have any study mat, my company account study mat, then my advice is first write the question in your copy, then proceed. Okay, thoroughly read करो क्वेश्चन नंबर 1 को. ओके, X Limited has a balance of rupees 42 lakhs in the PL account. इसका मतलब PL का बैलेंस हमारे पास 42 लाख है. ठीक है, द कंपनी डिसाइडेड टू फॉरगो द पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड. कंपनी डिविडेंड देना नहीं चाहता है एंड इंस्टेड यूटिलाइज द प्रॉफिट टू पे 30 लाख 12% डिवेंचर इशूड ऑन 1/4/2011. कंपनी सोच रहा है कि मैं डिविडेंड नहीं पे करूंगा, जो भी पैसा है प्रॉफिट में वो पैसा को मैं यूटिलाइज करूंगा मेरा जो 12% डिवेंचर है उसको रिडम्पशन करने के लिए. तो ठीक है, टू पे 30 लाख. कितना रिडम्पशन वो पे करेगा या कितना डिवेंचर वो रिडीम करेगा? सर 30 लाख का डिवेंचर वो रिडीम करेगा. तो ठीक है, डिवेंचर व्हिच वाज इश्यूड ऑन 1/4/2011. काइंडली मार्क this point. डिबेंचर वाज इश्यूड ऑन 1/4/2011. ओके, वो रिडीम्ड होगा 10% प्रीमियम में. वो रिडीम्ड होगा 10% प्रीमियम में. ठीक है, कब रिडीम हो रहा है? अब बोलेंगे सर 30 जून 2015 को रिडीम्ड हो रहा है. 30 जून 2015 को रिडीम हो रहा है. ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली ऑन 31st December every year. It means debenture interest will be paid on 31st December every year. The company also had a balance of 20 lakh in DRR. DRR में 20 लाख का बैलेंस है. Accounting year is calendar year, means 1 January, 1st January to 31st December. Your accounting year is 1st January to 31st December. Okay. Give accounting treatment. Give accounting treatment. What does it mean? It means we have to give necessary journal entry. We have to give necessary journal entry. Let me explain whether the particular redemption is redemption out of capital or redemption out of profit or redemption by way of conversion. Can anyone here to answer me? आप बोलेंगे सर ये redemption out of profit, ये redemption out of profit. आप बोलेंगे क्यों? आप बोलेंगे सर ये जो देखो ना रिडम्पशन हो रहा है 30 लाख. हम लोग को हमें पता है कि अगर जितना डिबेंचर रिडम्पशन होगा उसका 25% अगर डीआरआर में है, एटलीस्ट 25% अगर डीआरआर में है, तो हम मानेंगे कि वो डिबेंचर वो रिडम्पशन बाय आउट ऑफ प्रॉफिट. अगर एटलीस्ट 25% नहीं है डीआरआर में तो हम मानेंगे कि वो redemption is redemption by out of capital. As per the question, in our DRR there is a balance of 20 lakh. In our DRR there is a balance of 20 lakhs. It means the particular redemption is redemption out of profit. It means the particular redemption is redemption out of profit. तो सबसे पहले लिखो the particular redemption is redemption out of profit, since there is
since there is adequate balance in DRR. Since there is adequate balance in DRR, we have to assume that such redemption is redemption out of profit. Okay, चलो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी सबसे पहले एक काम करो, जरा इसको ग्राफिकली थोड़ा एनालिसिस करो। इस क्वेश्चन को पहले ग्राफिकली एनालिसिस करो, फिर उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे या जनरल एंट्री दे देंगे। तो ठीक है, देखो बेटा, वो रिडम्पशन कब हो रहा है? अब बोलेंगे सर 30 जून 2015 को रिडम्पशन हो रहा है। बोलो यस सर, नो। यस सर, 13 जून 2015 को रिडम्पशन हो रहा है। ओके, योर अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। योर अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। एक मिनट, okay, your accounting year is calendar year, means 1/1/15, 31st December 15. We have to give the accounting treatment for the year 2015. That will start from 1/1/15 and that will be end on 31st December 2015. Okay, can you tell me what is interest payable date? Can you tell me what is our interest payable date? Interest payable date is 31st December every year. Interest payable date is 31st December every year. It means on 31st December 14 the company had paid interest. On 31st December 2014 the company had paid interest. The next interest payable date is 31st December 2015. But before this date, the debenture will be redeemed. The debenture will be redeemed. And can you observe, from last interest payable date, already 6 months is expired. ऑलरेडी 6 महीना जा चुका है जो लास्ट इंटरेस्ट मैंने दिया था। मैंने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था? 31st दिसंबर 2014 को। हाँ, नेक्स्ट इंटरेस्ट मुझे देना है कब? 31st दिसंबर 2015 को। लेकिन मेरा जो डिवेंचर है वो रिडीम्ड हो रहा है 30 जून 2015 को। मेरा जो डिवेंचर है वो रिडीम्ड हो रहा है 30 जून 2015 को। इसका मतलब 6 महीना ऑलरेडी पास हो चुका है। तो हम इधर यही बोलेंगे, तो क्या हुआ ना, इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 months बट नॉट पेड। 6 महीना के लिए इंटरेस्ट तो ड्यू हो चुका है, 6 महीना के लिए इंटरेस्ट तो ड्यू हो चुका है, लेकिन वो पेड नहीं हुआ है। जब रिडम्पशन होगा पहले इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा, फिर उसके बाद रिडम्पशन होगा। जब रिडम्पशन होगा पहले इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा, फिर उसके बाद रिडम्पशन होगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट पोर्शन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे लोग क्या करते हैं ना, इंटरेस्ट को भूल जाते हैं एग्जाम में। जब ज्यादा सीरियसनेस हो जाते हैं ना, तब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन को वो लोग भूल जाते हैं। वहीं पे सॉल्यूशन उतना पोर्शन के लिए रॉन्ग हो जाता है।
जिसके वजह से आप लोगों को फुल मार्क नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आज कसम खाएंगे कि डिबेंचर से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट को एनालिसिस करेंगे। तो कसम खा के बोलो कि अगर डिबेंचर से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं पहले इंटरेस्ट को एनालिसिस करूंगा, फिर उसके बाद डिबेंचर का सॉल्यूशन करूंगा। बोलो हाँ ठीक है सर, हम बोल दिए। अब आगे चलिए। अब बोलो इंटरेस्ट फॉर 1/15 to 30th June 15। इंटरेस्ट फॉर 1/15 to 30th June 15। बोलो कितना लाख का डिबेंचर रिडम्पशन होगा? 30 लाख। ओके, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट? 12% इंटू 6/12 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर क्यों? 6 महीने का इंटरेस्ट ना, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है जरा कैलकुलेशन करो। तो सर 1,80,000 आ रहा है। वेरी गुड बेटा। इसका मतलब remains when I will redeem my debenture, first I have to pay interest. First I have to pay interest. Which interest you have to pay? Interest which are due but not paid. Interest which are due but not paid. अगर यहां तक आप क्लियर है तो इसको कॉपी मारो, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। मारो इसको कॉपी। ठीक है, ओके सर, हो गया। तो चलो लिखो, मैं देख रहा हूं। सॉल्यूशन। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कौन सा कंपनी? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के बुक्स में हम लोग जर्नल एंट्री देंगे। चलो जर्नल एंट्री तो डेट वाइज देना पड़ेगा। बोलो आप कौन सा ईयर के लिए जर्नल एंट्री दोगे? For which year you have to give journal entry? Sir, we have to give journal entry for 2015. For the year of 2015. The year 2015 will start from 1st January and will end on 31st December. Hence, 1st January 2015। बोलो 1st January 2015 को क्या एंट्री होगा? आप बोलेंगे सर यहाँ नो एंट्री। ठीक है बेटा, 1st जनवरी 2015 को कुछ भी एंट्री नहीं होगा, क्योंकि 31st दिसंबर मतलब पिछले दिन में इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका है। तो ठीक है, तो इसीलिए 1st जनवरी 2015 में कुछ भी एंट्री नहीं होगा। आप बोलेंगे सर क्या हम लोग भी एग्जाम में लिखे 1st जनवरी 2015 नो एंट्री? नो, ये समझने के लिए। तो इसीलिए आपके दिमाग में वो रहेगा कि हाँ 1st जनवरी में कुछ एंट्री नहीं होगा। तो ठीक, फिर उसके बाद हम लोग को 30 जून 2015 को एंट्री देना। बोलो इस दिन क्या होगा? रिकॉर्ड इंटरेस्ट। रिकॉर्ड इंटरेस्ट, बोलो इंटरेस्ट ड्यू होगा पहले। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल पर टू इंटरेस्ट। कितना का? 1,80,000 बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। ठीक है, अब इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया। अब एक काम करो, ये इंटरेस्ट को डिबेंचर होल्डर का अकाउंट को ट्रांसफर करो। ट्रांसफर
इंटरेस्ट पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ट्रांसफर इंटरेस्ट पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर इंटरेस्ट पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। बोलो क्या होगा एंट्री? इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,80,000, 1,80,000। बोलो नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा कि बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, फिर इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर अकाउंट को ट्रांसफर भी हो गया। अब इंटरेस्ट पेमेंट होना बाकी है, तो हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे जब डिबेंचर रिडेम्पशन हो जाएगा। मतलब हम पेमेंट एंट्री साथ में देंगे, साथ में डालेंगे। तो ठीक है, चलो अब लिखो रूल। क्या आपको याद है, क्या आपको याद है कि रिडेम्पशन से पहले हमारा डीआरआर में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। अगर डीआरआर में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो पहले आप डीआरआर में सफिशिएंट बैलेंस, डीआरआर को सफिशिएंट बैलेंस ट्रांसफर करोगे, फिर उसके बाद रिडेम्पशन करोगे। तो उसी को हम, वही कंसेप्ट का वही रूल को हमको लिखना है यहाँ पे। तो लिखो आज पर Rule 18(7), the company must have sufficient balance in DRR before commencement of redemption. बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिडम्पशन। बोलो आपका रिडम्पशन कब हो रहा है? 30 जून 2015। You must have sufficient balance in DRR prior to 30th June 2015. You must have sufficient balance in your DRR prior to 30th June 2015. इधर 30 लाख का डिवेंचर रिडम्पशन होगा तो 30 लाख का एटलीस्ट 25% बोलो। 30 लाख का एटलीस्ट 25%, वो हो रहा है 7,50,000। क्या तुम्हारा डीआरआर में 7,50,000 या उससे ज्यादा है? देखो, द बैलेंस इन डीआरआर इज 20 लाख। Hence, Rule 18(7) is satisfied. बोलो रूल 18(7) सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब रिडम्पशन आगे जा पाएगा या नहीं? आप बोलेंगे सर हाँ रिडम्पशन आपको मतलब प्रोसीड हो सकता है, क्योंकि अगर रूल 18(7) सेटिस्फाई नहीं होता तो रिडम्पशन नहीं हो पाएगा। बोले रिडम्पशन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो कंपनी कैन प्रोसीड रिडम्पशन। अब वो कंपनी रिडम्पशन को प्रोसीड कर सकता है। तो ठीक है, फिर लिखो
as per rule 187C, the company shall before 30th April, the company shall before 30th April of every year make DRR इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा, आपको एग्जाम में ये सारे रूल लिखना है। अगर आप रूल नहीं लिखोगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको अच्छा मार्क नहीं मिलेगा। तो अच्छे मार्क लाने के लिए हमको सारे चीज डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 30th April every year make DRR investment at least 15% of nominal value of debenture maturing on 31st March of next year. I am doing nothing but I am writing the rule of 18.7 and 18.7C for better presentation, a better clarity. Okay. देखो, December 31st 2015, 31st March 16, इधर तो 31st मार्च ही लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर हम लोग है तो अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है तो हम 31 दिसंबर लेंगे, नहीं। 18.7C clearly mentioning that 31st March of next year, whether your accounting year may be calendar year or financial year, it does not make any difference. You have to, for the purpose of rule 18.7C, we have to consider 31st March in every cases. We have to consider 31st March in every cases. Are you okay? Yes or no? Okay. ठीक है, this is your 31st December 15, this will be 1/1/15, तो इधर एक डेट आएगा 30th April 15, तो इसी डेट को इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। कब? 31st अप्रैल को। बोलो कितना डिबेंचर रिडीम्ड होगा आगे जाके? तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड $30 लाख का डिबेंचर आगे जाके रिडीम्ड होगा। बोलो एस और नो? एस। As per rule 18.7C, the value of a DRR investment must be at least 15%. तो value of DRR investment
वैल्यू ऑफ DRR इन्वेस्टमेंट शुड बी, मैं एटलीस्ट के टर्म पे ही लिख रहा हूं, शुड बी 30 लाख इंटू 15% इज इक्वल टू 4,50,000। इसका मतलब 30 अप्रैल, इसका मतलब 30 अप्रैल 2015 को आपके पास डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट 4,50,000 होना चाहिए। बोलो क्या क्वेश्चन में बोला कि सफिशिएंट डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है? यस और नो? क्या क्वेश्चन में इस बात को क्लियर बोल रहा है कि हाँ हमारे पास डिबेंचर इन्वेस्टमेंट भी है? नहीं सर। तो हम यही अज्यूम करेंगे कि कंपनी अभी तक डिबेंचर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कंपनी अभी तक डिबेंचर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो उसको पहले लिखो फिर उसके बाद हम लिखेंगे। लिखो सिंस it is not given in question that, since it is not given in question that whether company have sufficient DRR investment or not. Sorry. Whether company have sufficient DRR investment or not, we assume that company have no sufficient DRR इन्वेस्टमेंट। मैं यही अजम्पशन ले रहा हूं कि कंपनी के पास सफिशिएंट DRR इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं यही अजम्पशन ले रहा हूं कि कंपनी के पास सफिशिएंट DRR इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमें DRR इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बोलो कब DRR इन्वेस्ट करेंगे? कब DRR इन्वेस्ट करेंगे? रूल के हिसाब से, रूल के हिसाब से, रूल के हिसाब से बोलो 30 अप्रैल के दिन या उसके आगे या बिफोर 30 अप्रैल? बिफोर 30 अप्रैल। अगर आप 30 अप्रैल को इन्वेस्ट करोगे तो रूल को आप कंप्लाई नहीं करोगे, नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि रूल के हिसाब से वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट बिफोर 30 अप्रैल। एज पर रूल वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट बिफोर 30 अप्रैल। Hence, the last permitted date is 29th April. The last permitted date is 29th April. तो चाहे इन्वेस्टमेंट डिले कर सकते हो लेकिन 29th अप्रैल से आगे नहीं। इसका मतलब द लास्ट ड्यू डेट फॉर इन्वेस्टमेंट इज 29th अप्रैल। बोलो 29th अप्रैल को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। 29th अप्रैल को क्या होगा? मेक DRR इन्वेस्टमेंट, मेक DRR इन्वेस्टमेंट। अब DRR का इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। बोलो एंट्री क्या होगा? DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बोलो एटलीस्ट कितना का इन्वेस्टमेंट चाहिए? आप बोलेंगे सर हमें एटलीस्ट 4,50,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इधर एटलीस्ट 4,50,000 होगा। आप बोलेंगे सर हम 4,50,000 से ज्यादा लेंगे, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 4,50,000 से कम होगा तो नहीं चलेगा।
being investment recorded. ओके, अब रूल 18(7) एंड रूल 18(7)(c) दोनों कंप्लाई, मतलब रूल 18(7) भी सेटिस्फाइड, रूल 18(7)(c) भी सेटिस्फाइड। इसका मतलब अब हम लोग रिडम्पशन स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो, रिडम्पशन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि whether रूल 18(7) and रूल 18(7)(c) is satisfied or not. If rule 18(7) or 18(7)(c) any of these two rule या all is not satisfied, then first we have to make comply with 18(7) and 18(7)(c. Then we can proceed with redemption. अब बोलो, रूल 18(7) और रूल 18(7)(c) दोनों कंप्लाई हो चुका है, तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, रिडम्पशन शुरू कर सकते हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि रिडम्पशन, तो लिखो जर्नल एंट्री फॉर रिडम्पशन। जर्नल एंट्री फॉर रिडम्पशन बोलो, पहले 30 जून 2015 को होगा। देखो बेटा, इंटरेस्ट का ड्यू ऑलरेडी हो चुका है, तो इंटरेस्ट पेमेंट होना बाकी है, तो अब हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन और एक बार फिर से ड्यू नहीं करेंगे, क्योंकि बिगनिंग में मैंने इंटरेस्ट को ड्यू कर चुका हूं। तो पहले रिडम्पशन ड्यू, बोलो रिडम्पशन ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगा? रिडम्पशन जब ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगा? सर 12% डिबेंचर डेबिट होगा नॉमिनल वैल्यू में 30 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट होगा 30 लाख का 10%। देखो कितना, मुझे तो किताब दिखना पड़ेगा। 30 लाख आटे 10%, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 3 लाख टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 33 लाख being redemption recorded, बोलो ड्यू होगा, फिर उसके बाद आपके पास जो DRR इन्वेस्टमेंट वो सेल होगा, फिर उसके बाद पेमेंट होगा। अब बोलेंगे सर हम बिना सेल करके पेमेंट नहीं कर सकते हैं बेटा, ना, पहले इन्वेस्टमेंट को सेल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर का आप पे करोगे। लिखो सेल DRR इन्वेस्टमेंट, सेल DRR इन्वेस्टमेंट। बोलो DRR इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू DRR इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू DRR इन्वेस्टमेंट। बोलो DRR इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना? सिर्फ 4,50,000 being
इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ओके, अब क्या होगा, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। अब क्या होगा ना, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होगा। बोलो क्या एंट्री होगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बीइंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। बोलो डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट होगा, इंटरेस्ट का 1,80,000 पेमेंट होगा, फिर उसके बाद रिडम्पशन के लिए 33 लाख पेमेंट होगा। तो 33 लाख प्लस 1,80,000 कम्स टू 34,80,000, 34,80,000। क्या जगह खत्म हो गया, ठीक है। और 2 एंट्री हमारे लिए बाकी है, 2 एंट्री। क्या है वो 2 एंट्री, देखो मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैं यहां पार्टीशन कर रहा हूं। आप लोग ऐसे पार्टीशन मत कीजिए, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैं पार्टीशन कर रहा हूं, कोई दूसरे कलर में मैं भी लिखूंगा। अब बोलो, ट्रांसफर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बोलो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को ट्रांसफर करोगे। आप बोलेंगे सर कहां ट्रांसफर होगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट होगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट होगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो पीएल से एडजस्ट होगा। तो बोलो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, आज पर इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन इज देयर एनी सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस, बोलो यस सर नो। अब बोलेंगे नो सर, इसका मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहां जाएगा, अब बोलेंगे सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पीएल को जाएगा। तो क्या होगा एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना 3 लाख, बीइंग वगैरह वगैरह खुद लिखो, बीइंग प्रीमियम कैंसिल। अब क्या होगा, ट्रांसफर DRR टू GR, एकदम लास्ट एंट्री याद है, हाँ सर याद है। ट्रांसफर DRR टू GR, बोलो फॉर ट्रांसफरिंग DRR टू GR व्हाट विल बी द जनरल एंट्री, सर DRR डेबिटेड टू GR। बोलो DRR में कितना बैलेंस था, 20 लाख, 20 लाख, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। बस एक क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो प्रेजेंटेशन का लेवल आपको इस प्रकार का प्रेजेंटेशन देना है, अगर आप ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं करोगे तो आप फुल मार्क नहीं सिक्योर कर सकते हो। तो ठीक है, आपको फुल मार्क नहीं मिलेगा। तो काइंडली मैं हर क्वेश्चन में तो और प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन के लिए लिखा दिया कि हाँ प्रेजेंटेशन ऐसे होता है,
तो अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो। आप क्या करोगे ना, खाली जर्नल एंट्री लिख लोगे। अगर खाली जर्नल एंट्री आप लिख दोगे तो आपको फुल मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि द क्वेश्चन डिजर्व्स, आप रूल लिखो, फिर हेडिंग लिखो, नरेशन लिखो, बहुत कुछ लिखो। तो अगर सारे चीज आप लिखोगे तो आपका फुल मार्क मिलेगा। क्या बेटा क्वेश्चन समझ में आया? बोलो यस और नो। इफ यस देन आई हैव ए रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, within 3 minutes make a quick revision. Within 3 minutes make a quick revision, then we will proceed ahead. Okay, so take break for revision. हो गया आप लोग का रिवीजन? हाँ सर हो गया। काइंडली रीड क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर भी कॉपी में क्वेश्चन लिखना है, तो ठीक है। क्वेश्चन लिखोगे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखो। Number of convertible debenture 1000. Oh my God, this is your convertible debenture. Can you tell me what is convertible debenture? आप बोलेंगे हाँ सर, जो डिबेंचर इक्विटी को कन्वर्ट हो जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर। बेटा ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर, क्या आपको याद है कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए कोई भी DRR मतलब रिजर्व और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए? मैंने लास्ट क्लास लिखाया था, देखो नोट पढ़ो। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए कोई भी DA 18(7) और 18(7)(C नहीं लगता है।
इसका मतलब अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में क्वेश्चन आया तो आप 18(7) और 18(7)(c) जो रूल है उसको मत देखना, तो इसको इग्नोर करके आंसर लिखना। तो ठीक है, हाँ सर ठीक हो गया। बोलो कितना कन्वर्टेबल डिबेंचर है आपके पास? 1000। पर डिबेंचर नॉमिनल वैल्यू कितना? 100। वो रिडीम्ड होगा 20% प्रीमियम, वो रिडीम्ड होगा 20% प्रीमियम। इधर फुल स्टॉप दे दो, नहीं तो कॉमा दे दो, ठीक है। इक्विटी शेयर का वैल्यू 20 रुपीज, एक इक्विटी शेयर को 20 रुपीज में वैल्यूएशन किया जाएगा। ये 20 में क्या आपको याद है? फेस वैल्यू 10 होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 होगा। अब बोलेंगे सर इससे क्यों? क्योंकि इंडिया में जो भी इक्विटी शेयर होता है उसका फेस वैल्यू 10 होता है, 10 से ज्यादा नहीं होता है। इंडिया में इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब फेस, लेकिन एक शेयर का वैल्यूएशन कितना होगा? 20। मतलब मैंने आपको एक शेयर दे दिया, इसका मतलब 20 रुपया का वेल्थ दे दिया। मैंने आपको एक शेयर दे दिया, इसका मतलब 20 रुपया का वेल्थ दे दिया। तो ठीक है, चलो लिखते हैं इसका आंसर। लिखो सॉल्यूशन। फर्स्ट लिखो अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर कितना। ठीक है, बोलो 1000 डिबेंचर रिडम्पशन होगा जिसका फेस वैल्यू 100। ठीक है, उसको आप 20% ज्यादा पेमेंट करोगे, क्योंकि प्रीमियम 20% ज्यादा पेमेंट करोगे, तो क्योंकि प्रीमियम। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड 1000 into 100। बोलो कितना? 1 लाख, जिसके ऊपर आपको देना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 लाख का 20%। तो 1,20,000 आपको पेमेंट करना है। तो ठीक है, अब बोलो वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर कितना? 20, जिसमें कैपिटल कितना? ₹10। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? ₹10। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? ₹10। अब बोलो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड। बोलो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है 1,20,000। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है 1,20,000। 1 इक्विटी शेयर का वैल्यू 20 रुपया, इसका मतलब आप कितना, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स विल बी इश्यूड टू कवर 1,20,000 वेल्थ। अब बोलेंगे सर 1,20,000 डिवाइड बाई 20, 1,20,000 divided by 20, that is 6,000. It means the company have to issue 6,000 equity share to डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, बोलो जनरल एंट्री क्या होगा?
लिखो जर्नल एंट्री। डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो कितना होगा? अच्छा देखो तो, ये जो 6,000 इक्विटी शेयर इश्यू होगा, इसमें 6,000 इंटू 10 होगा कैपिटल, 6,000 इंटू 10 हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब इक्विटी कैपिटल हो जाएगा 60,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 60,000। नरेशन खुद लिख लेना। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को कैंसिल करना होगा। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को कैंसिल करना होगा। लिखो ट्रांसफर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ट्रांसफर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बोलो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैंसिल होगा या तो सिक्योरिटी प्रीमियम को जाएगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, नहीं तो पीएल को जाएगा। देखो इधर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है कितना? 60,000। आपका कितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है? 20,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में पूरी मतलब फुल्ली एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या होगा एंट्री? क्या होगा एंट्री? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन being प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैंसल्ड। बस यही था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बस यही था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बोलो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया? यस और नो? यस सर, क्वेश्चन नंबर 2 हमें समझ में आ गया। फिर से मैंने आप लोगों को 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। Within 1 minute, make a proper revision to question number 2. Okay, your time starts now.
हाँ ओके, हो गया आप लोग का टाइम, हो गया रिवीजन भी हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेगा। Noida Toll Bridge Corporation Limited, an infrastructure company, just look to the point, an infrastructure company। ठीक है, आगे रीड करो। Issued 100 lakhs 10% debenture of ₹100 each on 31st April 2013, due for redemption 31st March 2014। मतलब 31st अप्रैल 2013 में इश्यू हुआ, वो रिडम्पशन होगा 31st मार्च 2014 at 10% premium। How much minimum amount should be credited to DRR? How much minimum amount should be credited to DRR? Also state the amount required to be deposited oblique invested in the year of redemption. Record necessary journal entry for redemption of a debenture। इसका आंसर खुद निकालो, देखो तो क्या होगा आंसर। बोलो, आप बोलेंगे सर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए DRR का प्रोविजन नहीं लगता है। मैं बोलूंगा कि आपको कैसे पता चला कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए, ना आप तो हाईलाइट कर दिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का, और कुछ एग्जाम लिखा थे जो ये सब कंपनी के लिए DRR का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, 18(7) और 18(7)(c) नहीं लगता है। बेटा वो लिस्ट को और अच्छे से एक बार देखना, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं था। ये सीए इंस्टीट्यूट का एग्जाम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जान पूछ के ब्रैकेट में लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। जो लोग हल्का से रीड किए होंगे उनको लगेगा कि हाँ हाँ चलो 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 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए भी एग्जाम्शन था। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए एग्जाम्शन नहीं था। देखो कौन सा कंपनी के लिए एग्जाम्शन था, कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए एग्जाम्शन था, नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर एग्जाम्शन था, बैंकिंग कंपनी अगर डिबेंचर इश्यू करेगा तो एग्जाम्शन था, एनबीएफसी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई इश्यू करेगा तो एग्जाम्शन था। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट वहां नहीं था, तो इसीलिए मैंने भी जानबूझ के आपको बोला कि चलो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। ठीक है, अब बोलो। तो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो उसको DRR का रूल फॉलो होगा। तो आप बोलेंगे सर सीधा आंसर लिख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे आंसर लिख देंगे, मार्क नहीं मिलेगा बेटा। ये जो होता है ना, इसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, मतलब पूरा का पूरा प्रोविजन को आपको लिखना होगा। तो लिखो आंसर। ये थियोरेटिकल बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसको कहते हैं थियोरेटिकल बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख रहा हूं, लिखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117C ऑफ कंपनीज एक्ट, आप बोलेंगे सर सेक्शन याद रखना पड़ेगा क्या? बेटा मेरा याद है, मैंने इसीलिए लिख दिया।
अगर तुम्हें याद नहीं तो सीधा लिखो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, चलेगा, कोई बात नहीं। Where a company issues debenture, where a company issues debenture after commencement of this act, after commencement of this act, comma, it shall create a debenture redemption reserve for the redemption of such debenture. नेक्स्ट लिखो adequate amount of profit should be transferred every year to DRR. Adequate amount of profit should be transferred every year to DRR out of, चलो out of profit तो लिख लिया ना मैंने। नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो एज पर एमसीए क्लैरिफिकेशन। एमसीए का मतलब बेटा होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो एज पर एमसीए क्लैरिफिकेशन adequacy of a debenture redemption reserve for the debentures issued by companies including manufacturing and infrastructure company is 25% of value of debenture, 25% of value of a debenture issued through public issue। क्या बेटा हम इस पॉइंट को नहीं लिखे थे कि आरडीक्यू से कितना परसेंट होता है? 25%। 25% एटलीस्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा। 25 से ज्यादा होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन आरडी मिनिमम 25% आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो बोलो कितना डिबेंचर रिडीम्ड होगा? मतलब जो डिबेंचर रिडीम्ड होगा उसका नॉमिनल वैल्यू कितना? सर 100 लाख इंटू 100, तो लिखो
nominal value of a debenture to be redeemed. $100 lakhs into 100. $100 crores. अब बोलो DRR balance should be 25% of 100 crore is equal to 25 crore. इसका मतलब 25 करोड़ DRR आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लिखो therefore minimum amount of 25 crore shall be kept in DRR. ठीक है, अब बोलो ये तो DRR का हो गया। बोलो डिबेंचर कब इश्यू हुआ था? डिबेंचर कब इश्यूड हुआ था? 1 अप्रैल 13 को। डिबेंचर कब इश्यू हुआ था? 1 अप्रैल 13। कब रिडम्पशन होगा? 31 मार्च 14। बोलो यहां से यहां कितना साल? 1 साल। क्या आपको याद है एक सेबी का गाइडलाइंस भी था, मैंने पिछले क्लास लिखाया था। सेबी का गाइडलाइंस के हिसाब से अगर 18 मंथ एक्सीड नहीं हो रहा है तो हमें DRR का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेंगे, मतलब करना वी मे और मे नॉट बी फॉलोड। तो उस बात को भी हमको लिखना पड़ेगा। देखो इन द गिवन केस 18 मंथ एक्सीड नहीं हो रहा है तो सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से हाँ DRR नहीं होगा, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से DRR मेंटेन होगा। अब बोलेंगे सर देखो प्रायोरिटी होता है कंपनीज एक्ट, ठीक है। सेबी का गाइडलाइंस आज है, जैसे कि इंडिया गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ रहा है कोविड-19 के लिए, बस सेबी का गाइडलाइंस ऐसे ही है। तो आज वो गाइडलाइंस से काल वो गाइडलाइंस को विड्रॉ कर देगा तो क्या होगा? तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप कंपनीज एक्ट और रूल 18(7) सी के हिसाब से लिखो, लेकिन एक रिफरेंस दे देना कि सेबी गाइडलाइंस को। तो ठीक है, तो सेबी गाइडलाइंस का हिसाब से मेन सॉल्यूशन मेन आंसर मत दीजिए। तो मुझे यहीं पे नोट लिखना पड़ेगा कि लिखो नोट ऑल्सो रिमेंबर दैट एज पर सेबी गाइडलाइंस
DRR is not applicable if period not exceed 18 months। अगर पीरियड 18 मंथ एक्सीड नहीं करता है तो DRR एप्लीकेबल नहीं होता है। आप बोलेंगे सर फाइनली हम क्या करेंगे? बेटा तुम्हें दो आंसर देना पड़ेगा, एक तो रूल 18C 18(7) और 18(7)C के हिसाब से, फिर एक रेफरेंस दे देना सभी गाइडलाइंस। तो ठीक है, फिर बोला कि स्टेट व्हाट अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड इन्वेस्टेड इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन। तो लिखो अब क्या, ये नोट खत्म हो गया। पार्ट 2 बोलो इन्वेस्टमेंट के बारे में कौन सा रूल बताता है? आप बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट के बारे में रूल 18(7)C प्रोविजन लिखना पड़ेगा। तो लिखो फर्दर एवरी कंपनी। अच्छा वो प्रोविजन तो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास जगह है या नहीं, इतना का जगह है तो हम देखेंगे। ठीक है, लिखो फर्दर एवरी कंपनी required to further every company required to create DRR shall before 30th April of every year deposit oblique invest a sum of at least 15% of the amount of debenture maturing during the year ending on 31st March of next year। by any of the following mode। क्या डिपॉजिट इन शेड्यूल्ड बैंक या इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। या तो शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करो, नहीं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डिपॉजिट करो। बाकी इधर और दो पॉइंट है लेकिन हम नहीं लिखते हैं, वो कंपनी जाके हिसाब से, तो इतना लिखोगे तो चलेगा। देखो अकॉर्डिंगली नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Accordingly, Noida Toll Bridge Corporation Limited, Noida Toll Bridge Corporation Limited have to deposit invest, बोलो 100 करोड़ का 15%, 15 करोड़, क्योंकि 100 करोड़ इंटू 15%, आपका डिवेंचर जो मैच्योरिटी होगा कितना, 100 करोड़ इंटू 15% इन एनी ऑफ द above मोड। ठीक है, जर्नल एंट्री सेल्फ आंसर, जर्नल एंट्री खुद लिख लेना, मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखाया था, तो जर्नल एंट्री में बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तो आज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का ओन डिवेंचर वाला कॉन्सेप्ट है, हम क्वेश्चन नंबर 6 का कॉन्सेप्ट कवर नहीं किए, तो इसीलिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों बाकी है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन क्या करेंगे, ये आपके एग्जाम में आया था, मई 2016 में आया था, सेट इंस्टीट्यूट का एग्जाम में 4 मार्क का। मेंशन द वे बाय व्हिच रिडीमेबल डिबेंचर में बी रिडीम्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बोलो रिडीमेबल डिबेंचर कैसे रिडीम हो सकता है, कौन सा वे में, क्या इंस्टॉलमेंट पेमेंट था, लम्प सम पेमेंट था, फिर कन्वर्सन का मेथड था, रिडम्पशन कैपिटल था, बहुत कुछ था, तो वो सब पॉइंट लिखना पड़ेगा। लिखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन खुद लिखना चाहिए आंसर। रिडम्पशन ऑफ अ डिबेंचर मस्ट बी डन according to the terms of issue of debentures and any deviation will be treated as a default, by the company. Redemption by paying off the debt on account of debenture issued can be done in one of the following four method। मतलब जो रिडेम्पशन का पेमेंट ये 4 मेथड में हो सकता है। ठीक है, चलो
A by payment in lump sum amount at the end of a specified period of time. At the end of the specified period of time B. By payment in annual installment. C. By purchasing its own debenture in the open market. By purchasing its own debenture in the open market. ठीक है, लास्ट क्या होगा? बाय conversion into shares in full or part in part depending on the terms of issue. ओके, तो ये था हम लोग का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसका आंसर भी हो गया। तो अब चलो क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 मई 2015 सीए इंस्टीट्यूट का एग्जाम में आया था, 4 मार्क का क्वेश्चन। तो इसको पढ़ो, आंसर बनाओ। कमेंट ऑन द एडिक्वेसी ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व विथ रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग्स डिबेंचर इश्यूड बाय। बोलो एडिक्वेसी अमाउंट ऑफ डीआरआर कितना होता है? 15% ऑफ डिबेंचर। एडिक्वेसी होता है 15% ऑफ डिबेंचर, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनी। क्या आपको पता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई और बैंकिंग कंपनी अगर डिबेंचर इश्यू करेगा उसके लिए डीआरआर का कंसेप्ट नहीं लगता है, वो एग्जेम्पशन का लिस्ट में था। तो केस ए में वो एग्जेम्पशन हो गया, यहाँ पे डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग गिवन इन द कंपनीज एक्ट, तो इधर डीआरआर लगेगा 25% लगेगा। बोलो सुनो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर पब्लिक इश्यू करेगा तो डीआरआर लगेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट करेगा तो डीआरआर का कंसेप्ट नहीं लगेगा। ये सारे चीजें आप लोग कंपनी लॉ में पढ़े होंगे, ठीक है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक इश्यू में आएगा तो नहीं लगेगा, सॉरी लगेगा डीआरआर का कंसेप्ट। प्राइवेट प्लेसमेंट तो प्राइवेट इश्यू में आएगा तो नहीं लगेगा, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई या बैंकिंग कंपनी के लिए 100% एग्जेम्प्ट है, चाहे वो पब्लिक इश्यू या प्राइवेट इश्यू। फॉर डिबेंचर्स इश्यूड बाय एनबीएफसी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, फॉर डिबेंचर्स इश्यूड बाय एनबीएफसी रजिस्टर्ड बाय आरबीआई। बोलो वो एग्जेम्पशन का लिस्ट देखो क्या था। देखो एनबीएफसी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, अगर पब्लिक इश्यू करेगा
अगर पब्लिक इश्यू करेगा तो डीआरआर फॉलो करना पड़ेगा, अगर प्राइवेट इश्यू में आएगा तो डीआरआर फॉलो करना नहीं पड़ेगा। फॉर डिबेंचर इश्यूड बाय अदर कंपनीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, क्या है 25%। तो इसको आंसर लिखो, ये आज के लिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, तो ठीक है लिखो। पहले एक कॉलम बनाओ, डिबेंचर इश्यूड बाय, फिर adequacy of DRR, issued by, अच्छा ए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन regulated by RBI and banking company, no DRR is required। इसके लिए DRR नहीं लगता है, इसके लिए DRR नहीं लगेगा। बी क्या, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन within the meaning of Companies Act, within the meaning of Companies Act। बोलो 25% of a debenture issued through पब्लिक इश्यू, अगर पब्लिक इश्यू करेगा तो 25% फॉलो करना पड़ेगा। फिर नो DRR इज रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर्स issued under private placement, सी में क्या बोला, डिबेंचर इश्यूड बाय NBFC registered with RBI, NBFC रजिस्टर्ड विथ RBI, बोलो क्या होगा 25% of a debenture, 25% of a debenture issued through public issue, no DRR is required for प्राइवेट इश्यू, प्राइवेट इश्यू के लिए DRR नहीं लगेगा। बी
by companies including manufacturing and infrastructure company। बोलो क्या होगा? देखो इसका प्रोविजन कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैं लिखा रहा हूं। शायद आप बोलेंगे कि सर ये पॉइंट तो आप पहले से नहीं लिखाए थे। तो हाँ, मैंने नहीं लिखाया था, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब मुझे कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो लिखो फॉर लिस्टेड कंपनी 25% of value of debenture और listed company 25% of value of a debenture issued through public issue। and private issue। तो लिस्टेड कंपनी के लिए चाहे वो पब्लिक इशू हो या प्राइवेट इशू हो, ऑलवेज 25% फॉलो करना पड़ेगा। और अनलिस्टेड कंपनी, फॉर अनलिस्टेड कंपनी issuing debenture on private placement basis, comma, the DRRs will be 25% of value of debenture। आप बोलेंगे सर अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक इश्यू करेगा। देखो बेटा, अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक इश्यू नहीं कर सकता है, तो इसीलिए चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो 25% फॉलो करना पड़ेगा। तो लिस्टेड होगा तो पब्लिक इश्यू में भी 25%, प्राइवेट इश्यू में भी 25%। अनलिस्टेड होगा तो पब्लिक इश्यू तो नहीं हो पाएगा, लेकिन प्राइवेट इश्यू में भी 25% फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिबेंचर रिडम्पशन का हम सारे प्रोविजन खत्म कर चुके हैं, बहुत प्रॉब्लम भी कर चुके हैं उसके ऊपर। तो अब हम लोग का एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक रह जाता है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ ओन डिबेंचर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओन डिबेंचर पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 काफी लेंदी आंसर रहेगा, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओन डिबेंचर पढ़ने के बाद। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।